الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. اور جب اس چیز کو سنتے ہیں جو خدا کے رسول پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچان لینے کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم نے مان لیا، سو ہمارا نام تو اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور ہم اللہ کو اور اس حق کو کیوں نہ مانیں جو ہمارے پاس آ گیا ہے، جبکہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالحین میں شامل کرے گا. سو اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی اس بات کے صلے میں ان کو ایسے باغ عطا فرمائیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ان لوگوں کی جزا ہے جو خوبی کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں. رہے وہ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے تو وہی دوزخ کے لوگ ہیں. ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ اور نہ حدود سے تجاوز کرو. اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو حلال و طیب چیزیں اللہ نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اپنے اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو. تم میں سے بعض لوگ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں. سو جان لو کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو، لیکن جو قسمیں دل کے پختہ ارادے سے کھاتے ہو ان پر ضرور تمہارا مواخذہ کرے گا. سو اس طرح کی قسم اگر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اس معیار کا کھانا کھلایا جائے جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دیے جائیں، یا ایک غلام آزاد کیا جائے. پھر جسے یہ میسر نہ ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے ہیں. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھتے ہو. اسے ادا کرو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو. ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر سب گندے شیطانی کام ہیں. سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ ان سے باز آ جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو. لیکن ہماری اس ہدایت سے منہ موڑو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر تو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وضاحت کے ساتھ پہنچا دے. تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرنے لگے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے. پھر مزید یہ کہ تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. پھر یہی نہیں، تقوی اختیار کیا اور خدا کے ہر حکم پر خوبی کے ساتھ عمل پیرا ہوئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ خوبی کا رویہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایمان والو، اللہ کچھ ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرتا. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے ایک دردناک سزا ہے. ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، یہ ممنوع ہے. اور یاد رکھو کہ تم میں سے جس نے جانتے بوجھتے اسے مارا اس کا بدلہ تمہارے مواشی میں سے اسی کے ہم پلہ کوئی جانور ہے جیسا اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے. یہ نیاز کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اسی کے برابر روزے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے. اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے والا ہے. تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے، تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زیادہ راہ کے لیے، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو. خشکی کا شکار البتہ تم پر حرام کیا گیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے. اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے اور حرمت کے مہینوں میں قربانی کے جانوروں اور ان سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرا دیا ہے جن کے گلے میں نظر کی علامت کے طور پر اپنے پٹے ڈال دیے گئے ہوں. یہ اس لیے شعیرہ ٹھہرائے گئے ہیں کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے.
पैगंबर पर तो सिर्फ पहुंचा देने की जिम्मेदारी है और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ छुपाते हो। कह दो कि पाक और नापाक दोनों यकसा नहीं हैं, अगरचे नापाक की कसरत तुम्हें कितना ही फरेफ्ता करने वाली हो। सो अल्लाह से डरते रहो अकल वालो, ताकि तुम फलाह पाओ। ईमान वालो, ऐसी बातें न पूछा करो जो अगर जाहिर कर दी जाएं तो तुम पर गिरा हों, और ऐसे वक्त में कि कुरान नाजिल हो रहा है तुम उन्हें पूछोगे तो वो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। इस वक्त तो ये चीज़ें अल्लाह ने माफ़ कर दी हैं और अल्लाह बख्शने वाला है, वो बड़ा बुर्दबार है। तुमसे पहले एक कौम ने इसी तरह की बातें पूछी, फिर उन्हीं के मुनकिर होकर रह गए थे। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ने ना कोई बहीरा मुकर्रर किया है, न साहिबा, न वसीला, न हाम, मगर ये मुनकिरीन अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और इनमें ज़्यादा वो हैं जो अकल से काम नहीं लेते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उसकी तरफ आओ और अल्लाह के रसूल की तरफ आओ, तो कहते हैं कि हमारे लिए वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या इस सूरत में भी जबकि उनके बाप दादा कुछ न जानते हों और न राह हिदायत पर रहे हों? ईमान वालो, तुम अपनी फिक्र करो, तुम राह हिदायत पर हो तो जिन्होंने गुमराही इख्तियार कर ली है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तुम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। ईमान वालो, तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो उसके लिए तुम्हारे दरमियान गवाही इस तरह होगी कि तुम में से 2 सिखा आदमी गवाह बनाए जाएं, या अगर तुम सफ़र में हो और वहाँ मौत की मुसीबत आ पहुँचे तो तुम्हारे गैरों में से 2 गवाह ले लिए जाएं। पहली सूरत में अगर तुम्हें उनके बारे में कोई शुबा हो जाए तो तुम उन्हें नमाज के बाद रोक लोगे, फिर वो अल्लाह की कसम खाएंगे कि हम उसकी गवाही के बदले में कोई कीमत कबूल न करेंगे, अगरचे कोई क़राबतमंद ही क्यों ना हो, और न हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे। हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में शुमार होंगे। फिर अगर पता चले कि ये दोनों किसी हक़ तलफी के मुर्तकिब हुए हैं तो उनकी जगह 2 दूसरे आदमी उन लोगों में से खड़े हों जिनकी मुकद्दम गवाहों ने हक़ तलफी की है, फिर वो अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही इन दोनों की गवाही से ज़्यादा बरहक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज़्यादती नहीं की है। हमने ऐसा किया हो तो हम जालिमों में से होंगे। इस तरीके से ज़्यादा तवक्को है कि वो ठीक ठीक गवाही दें, या कम से कम इस बात से डरें कि उनकी कसमें दूसरों की कसम के बाद रद्द हो जाएंगी। अल्लाह से डरो और जो हुक्म दिया जाए उसको सुनो। ऐसा नहीं करोगे तो यह सरी नाफरमानी है और अल्लाह नाफरमानों को कभी रास्ता नहीं दिखाता। अल्लाह की गवाही जिन लोगों ने छिपाई है वो इस दिन को याद रखें जब अल्लाह सब रसूलों को जमा करेगा, फिर पूछेगा कि तुम्हारी उम्मतों की तरफ से तुम्हें क्या जवाब दिया गया। वो कहेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, तमाम छुपी हुई बातों के जानने वाले तो आप ही हैं। जब अल्लाह कहेगा ऐ मरियम के बेटे ईसा, मेरी उस इनायत को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर की थी, उस वक्त जब मैंने रूहुल कुदुस से तुम्हारी मदद की, तुम गहवारे में भी अपनी नबूवत का कलाम करते थे और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी। और याद रखो जब मैंने तुम्हें कानून और हिकमत सिखाई, यानी तौरात और इंजील की तालीम दी। और याद करो जब तुम मेरे हुक्म से परिंदे की एक सूरत मिट्टी से बनाते थे, फिर उसमें फूंकते थे और वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाती थी, और मादरजाद अंधे और कोड़ी को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे। और याद करो जब तुम मुर्दों को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करते थे। और याद करो जब मैंने बनी इसराइल के हाथ तुमसे रोक दिए, जब तुम खुली हुई निशानियां लेकर उनके पास आए और उनके मुनकिरों ने कहा कि कुछ नहीं, ये तो खुला हुआ जादू है। और याद करो जब मैंने हवारियों को ईमा किया कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं। याद करो जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ये कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का एक खान उतारे। ईसा ने कहा खुदा से डरो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। उन्होंने जवाब दिया हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस खान से खाएं और इसके नतीजे में हमारे दिल मुतमईन हो और हम ये जान लें कि तूने हमसे सच्ची बात कही थी और हम उस पर गवाही देने वाले बन जाएं। उस पर ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तू हम पर आसमान से एक खान नाजिल कर दे जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए एक यादगार बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो। परवरदिगार हमको अता फरमा और तू बेहतरीन अता फरमाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया मैं उसको तुम पर ज़रूर नाजिल कर दूंगा, मगर इसके बाद जो तुम में से मुनकिर होंगे उन्हें ऐसी सख्त सज़ा दूंगा जो दुनिया में किसी को न दी होगी।
اور یاد کرو جب یہ باتیں یاد دلا کر اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا سبحان اللہ، یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا۔ تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو آپ ہی ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی تو اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران رہے ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں تو آپ ہی زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی۔ ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے اندر تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے۔ تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی کج بحثیاں کرتے ہو۔ وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے اور جو کمائی تم کر رہے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، سو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلا دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ اس لیے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی جنہیں زمین پر ہم نے وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے۔ ان پر ہم نے خوب مہ برسائے اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، مگر وہ جھٹلانے پر مصر رہے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ تم پر اے پیغمبر اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے، تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر علانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ احمق نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے کوئی فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملتی، اور نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانوں کی صورت ہی میں بھیجتے اور اس طرح ان کو اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے۔ وہ تم سب کو جمع کر کے ضرور روز قیامت کی طرف لے جائے گا جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کو وہی لوگ نہیں مانتے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ رات میں ٹھہر جاتا اور دن میں رواں ہوتا ہے وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ سمیع و علیم ہے۔ کہہ دو اللہ کے سوا کیا میں کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور کھاتا نہیں کھلاتا ہے؟ کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر اطاعت جھکا دوں اور تاکید کی گئی ہے کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک ہولناک دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس دن سے عذاب سے دور رکھا گیا وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ یقین رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی رنج میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کر سکے، اور اگر بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اپنے بندوں پر وہ ہر لحاظ سے حاوی ہے اور حکیم و خبیر ہے۔
इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है, कह दो अल्लाह की, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान इसलिए वही किया गया है कि उसके ज़रिए से मैं तुम्हें खबरदार कर दूं, और इन्हें भी जिन्हें ये पहुँचे, क्या तुम इस बात के गवाह बनते हो कि खुदा के साथ कुछ दूसरे माबूद भी हैं? कह दो मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता, कह दो वो एक ही माबूद है और मैं उनसे यकीनन बरी हूँ जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। जिन्हें हमने किताब अता फरमाई है वो इस कुरान को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अलबत्ता अपने आप को खसारे में डाल रखा है वो उसे नहीं मानते और शिर्क पर इसरार करते हैं। दरा हाले के उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुठला दे। यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। इसलिए उस दिन को याद रखो जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे। इसके बाद उन मुशरिकों से पूछेंगे कि तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम खुदा का साजी गुमान करते थे। फिर उनका फरेब ख़त्म हो जाएगा, मगर कहेंगे अल्लाह हमारे परवरदिगार की कसम हम मुशरिक नहीं थे। देखो इन जालिमों ने किस तरह खुद अपने ऊपर झूठ बोला है, और जो इफ्तरा ये करते रहे वो सारा उनसे हवा हो गया है। उनमें ऐसे भी हैं जो कान लगाकर तुम्हें सुनते हैं, मगर उनके दिलों पर हमने अपने कानून के मुताबिक पर्दे डाल दिए हैं कि जो कुछ सुनते हैं उसे न समझें, और उनके कानों को बहरा कर दिया है कि सुनकर भी ना सुने। ये अगर हर किस्म की निशानियां देख लें फिर भी इन पर ईमान न लाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पास हुज्जत करते हुए आएंगे तो ये मुनकिरीन कहेंगे कि ये तो महज अगलों के अफसाने हैं। ये इससे दूसरों को भी रोकते हैं और ख़ुद भी उससे गुरेज कर जाते हैं, और हकीकत यह है कि अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं मगर उसका एहसास नहीं करते। अगर तुम इस वक्त को देख सकते जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे, फिर कहेंगे काश हम वापस भेज दिए जाएं कि तस्दीक करें और अपने परवरदिगार की आयतों को ना झुठलाएं और ईमान लाने वालों में शामिल हों। हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हकीकत उनके लिए बेनकाब हो गई है जो इससे पहले छुपाए हुए थे। अगर इन्हें लौटाया जाए तो वही करेंगे जिससे रोके गए थे। ये बिल्कुल झूठे हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है और मरने के बाद हम हरगिज़ न उठाए जाएंगे। अगर तुम उस वक्त को देख सकते जब ये अपने परवरदिगार के हुजूर में खड़े किए जाएंगे, वो उनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है? जवाब देंगे हाँ हमारे परवरदिगार की कसम ये हकीकत है। वो फरमाएगा तो अपने इनकार की पादाश में अब चखो अजाब का मज़ा। यकीनन घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह से इस मुलाकात को झुठलाया, यहाँ तक कि अचानक जब वो घड़ी आन पर उन पर आ पहुँचेगी तो कहेंगे अफसोस हमारी इस कोताही पर जो इस मामले में हमसे हुई है। और हाल ये होगा कि अपने बोझ वो अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। सुनो निहायत ही बुरा है वो बोझ जो ये उठाए होंगे। हकीकत यह है कि दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है। आखिरत का घर अलबत्ता कहीं बेहतर है उनके लिए जो तक़वा इख्तियार करे। फिर क्या तुम समझते नहीं हो? हम इस बात से वाकिफ़ रहे हैं कि जो कुछ ये कहते हैं उससे तुम्हें रंज होता है। तुम इस पर सब्र करो ए पैगम्बर, इसलिए कि ये तुम्हें नहीं झुठला रहे। ये जालिम तो आयत इलाही का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी रसूलों को इसी तरह झुठलाया गया था, तो अपनी तकजीब और अपनी अजियतों पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि हमारी मदद उन्हें पहुँच गई। अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं है, और हमारी सुन्नत को समझने के लिए पैगम्बरों की कुछ सरगुज़िश्तें तुम्हें पहुँच ही चुकी हैं। इनका इराज अगर इसके बावजूद तुम्हें गिरा गुजर रहा है तो ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई जीना ढूंढ सकते हो कि उनके पास कोई निशानी ले आओ तो ढूंढ लो। अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था। इसलिए जज्बात से मगलूब हो जाने वालों में से न बनो। हमारी इस दावत को वही कबूल करेंगे जो सुनने वाले हैं। रहे ये मुर्दे तो इनका अंजाम अब यही है कि अल्लाह इन्हें उठाएगा, फिर ये उसकी तरफ लौटा दिए जाएंगे। कहते हैं कि इस नबी पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कह दो अल्लाह पूरी कुदरत रखता है कि जब चाहे कोई निशानी उतार दे, मगर इनमें से अक्सर ये मुतालबा इसलिए करते हैं कि बाज़ हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं हैं। देखते नहीं हो कि ज़मीन पर जितने जानवर अपने पाँव से चलते हैं और फ़ज़ा में जितने परिंदे अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, सब तुम्हारी ही तरह उम्मतें हैं। और समझाने की हद तक तो हमने अपनी किताब में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके बाद यही बाकी है कि एक दिन ये अपने परवरदिगार के हुजूर में इकट्ठे कर दिए जाएंगे। हमारी आयतों को जिन लोगों ने झुठलाने का फैसला कर लिया है वो बहरे और गूंगे तारीकियों में पड़े हुए हैं। हकीकत यही है कि अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है।
इनसे कहो ज़रा बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत की घड़ी आ पहुँचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम अपने दावों में सच्चे हो? नहीं, बल्कि ऐसे हर मौके पर उसी को पुकारते हो। फिर वो चाहे तो इस मुसीबत को टाल देता है जिसके लिए पुकारते हो, और अपने ठहराए हुए शरीकों को उस वक्त तुम बिल्कुल भूल जाते हो। तुमसे पहले भी हमने बहुत सी कौमों की तरफ अपने रसूल भेजे थे और उन्होंने इनकार किया तो हमने उन्हें मसाइब व आलाम में भी मुब्तला किया था ताकि आजिज़ी इख्तियार करें। फिर जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो उन्होंने क्यों आजिज़ी इख्तियार न की, बल्कि उनके दिल और भी सख्त हो गए और शैतान ने उनके लिए उनके इसी अमल को खूबी बनाकर पेश कर दिया जो वो कर रहे थे। फिर जिस चीज़ से उन्हें याद दहानी की गई थी जब उन्होंने भुला दी तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उन पर खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो हमारी उन बख्शिशों पर इतराने लगे जो उन पर की गई थी तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया। अब हाल ये था कि बिल्कुल सजदर होकर रह गए। इस तरह उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म ढाया था। और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो आलम का परवरदिगार है कि उसने ज़मीन को इन जालिमों से पाक कर दिया। इनसे पूछो, कभी सोचा है कि अगर अल्लाह तुम्हारी समाअत व बसारत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो उसको तुम्हें वापस ला देगा? देखो किस तरह हम अपनी आयतें मुख्तलिफ पहलुओं से इनके सामने पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज करते हैं। पूछो, कभी सोचा है कि अगर अल्लाह का अजाब तुम पर अचानक आ धमके या हाके पुकारे आए तो क्या जालिम लोगों के सिवा किसी और को हलाक किया जाएगा? रसूलों को तो हम सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और उन्हें खबरदार करने वाले हों। सो जिन्होंने मान लिया और इस्लाह कर ली तो उन्हें कोई अंदेशा और कोई गम ना होगा। इसके बरखिलाफ जिन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया उनकी नाफरमानियों की पादाश में हमारा अजाब उन्हें पकड़ेगा। इनसे कह दो, ऐ पैगंबर, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ और ना तुमसे ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझे की जाती है। कह दो, मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या अंधे और देखने वाले दोनों यकसा हो जाएंगे? क्या तुम गौर नहीं करते? इन्हें अब इनके हाल पर छोड़ो और इस कुरान के ज़रिए से उन लोगों को ख़बरदार करो जो अंदेशा रखते हैं कि अपने परवरदिगार के हुजूर में इस तरह पेश किए जाएंगे कि उनके लिए उसके सिवा कोई हामी और कोई सिफारिश करने वाला ना होगा ताकि परहेजगारी इख्तियार करें। इनके ईमान के आरजू में तुम उन लोगों को अपने से दूर न करो जो सुबह व शाम अपने परवरदिगार को उसकी खुशनुदी की तलब में पुकारते हैं। उनकी जिम्मेदारी का कोई हिस्सा तुम पर नहीं है और न तुम्हारी जिम्मेदारी का कोई हिस्सा उन पर है कि इनकी ख्वाहिश पर तुम इन लोगों को दूर करके जालिमों में शामिल हो जाओ। हकीकत यह है कि हमने इसी तरह इनमें से एक को दूसरे से आजमाया है ताकि ये बदबख्त उन गरीबों को देख कर कहीं क्या कहें, क्या यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हमारे दरमियान से अपने फजल के लिए चुन लिया है? इनसे पूछो, क्या अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को सबसे बढ़कर नहीं जानता? इनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ हमारी आयतों को मानने वाले ये लोग जब तुम्हारे पास आया करें तो इनसे कहो कि तुम पर सलामती हो। तुम्हारे परवरदिगार ने अपने ऊपर रहमत लाजिम कर रखी है कि तुम में से अगर कोई नादानी के साथ बुराई का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर उसके बाद तौबा और इस्लाह कर लेगा तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हम इसी तरह अपनी आयतों की तफसील करते हैं ताकि नेकोकारों की रविश भी नुमायाँ हो और मुजरिमों ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ऐ पैगंबर, कह दो कि मुझे तो उनकी इबादत से रोका गया है जिन्हें तुम खुदा के सिवा पुकारते हो। कह दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों के पीछे नहीं चल सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो गुमराही में पड़ा और रास्ता पाने वालों में से नहीं रहा। कह दो, मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और तुमने उसे झुटला दिया है। तुम जिस चीज़ के लिए जल्दी मचाए हुए हो वो मेरे इख्तियार में नहीं है, उसका फैसला अल्लाह ही के इख्तियार में है। वही हक़ को वाज़ेह फरमाएगा और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी मचाए हुए हो अगर वो मेरे हाथ में होती तो मेरे और तुम्हारे दरमियान इस मामले का फैसला हो चुका होता। ये मामला अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ़ है। गैब की कुंजियाँ उसी के पास हैं, उन्हें इसके सिवा कोई नहीं जानता। बहरो बर में जो कुछ है उसके इल्म में है। दरख्त से कोई ऐसा पत्ता और ज़मीन की तहों में कोई ऐसा दाना भी नहीं गिरता और न कोई खुश्क उत्तर ऐसा है जिसे वो न जानता हो। ये सब उसके यहाँ एक खुली किताब में दर्ज है।
वही है जो रात में तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है और जो कुछ दिन में करते हो उसे भी जानता है, फिर उसी में तुम्हें उठा खड़ा करता है ताकि ज़िंदगी की मुकर्रर मुद्दत पूरी की जाए। आखिरकार तुम्हें उसी की तरफ लौटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ करते रहे हो। वो अपने बंदों पर पूरी तरह हावी है और तुम पर अपने निगरान मुकर्रर रखता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते ही उसकी रूह कब्ज करते हैं और इस काम में कभी कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अपने हकीकी मौला की तरफ लौटा दिए जाते हैं। सुनो, फैसले का सारा इख्तियार उसी के हाथ में है और वो बहुत तेजी के साथ हिसाब चुकाने वाला है। इनसे पूछो कि बहरोबर में आफात व मसाइब की तारीकियों से कौन तुम्हें बचाता है, जबकि तुम गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके उसे पुकार रहे होते हो कि अगर उसने इस मुसीबत से हमें बचा लिया तो हम ज़रूर उसके शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे। कह दो, इससे और हर मुसीबत से अल्लाह ही तुम्हें नजात देता है, लेकिन उसके बाद फिर शिर्क करने लगते हो। कह दो, वो पूरी कुदरत रखता है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से कोई अजाब भेज दे या तुम्हारे पाँव के नीचे से बर्पा कर दे या तुम्हें गिरोह दर गिरोह करके गुत्थम गुत्था करे और एक दूसरे की ताकत का मजा चका दे। देखो किस तरह हम अपनी आयतें मुख्तलिफ पहलुओं से पेश कर रहे हैं ताकि वो समझ लें। तुम्हारी कौम ने है पैगंबर हमारी इस वहीद को झुटला दिया है, तरह हालांकि ये बिल्कुल हकीकत है। इनसे कह दो कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई दारोगा नहीं बनाया गया हूँ कि तुम्हें ज़रूर ही समझा दूँ। हर बात के लिए एक वक्त मुकर्रर है, इसके बावजूद अजाब ही मांगते हो तो अनकरीब ये हकीकत तुम्हें भी मालूम हो जाएगी। इन्हें अब इनके हाल पर छोड़ो और जब देखो कि लोग हमारी आयतों पर नुक्ताचीनियाँ कर रहे हैं तो इनसे किनारा कश हो जाया करो, यहाँ तक कि किसी दूसरी बात में लग जाएं। और अगर कभी शैतान भुलावे में भुला दे तो गलती का एहसास हो जाने के बाद इन जालिम लोगों के साथ न बैठो। इनके हिसाब की कोई जिम्मेदारी उन लोगों पर नहीं है जो खुदा से डरने वाले हैं, अलबत्ता याद दहानी उनका फ़र्ज़ है ताकि ये भी डरने वाले बन जाएं। जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया है, उन्हें छोड़ो और इस कुरान के ज़रिए से याद दहानी करते रहो कि कहीं कोई शख्स अपने करतूतों की पादाश में हलाकत के हवाले ना कर दिया जाए, और वो भी इस हाल में कि अल्लाह के आगे ना उसका कोई हामी व मददगार हो और ना सिफारिश करने वाला, और अगर हर मुआवजा भी दे तो उससे कबूल न किया जाए। यही लोग हैं जो अपने करतूतों की पादाश में हिलाकत के हवाले किए जाएंगे। जिस कुफ्र का इर्तिकाब ये करते रहे हैं उसकी पादाश में उनके लिए खौलता हुआ पानी और एक दर्दनाक अजाब है। इनसे पूछो, क्या हम अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारें जो हमें ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान, और उसके बाद भी कि अल्लाह ने हमें हिदायत बख्श दी है, क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं उस शख्स की तरह जिसे शैतानों ने बयाबान में हैरान और सरगश्ता छोड़ दिया हो, दरा हाल है कि उसके साथी उसे राह हिदायत की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ जाओ। कह दो, हकीकत यह है कि अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है और हमें हुक्म दिया गया है कि अपने आप को जहानों के परवरदिगार के हवाले कर दें, और हुक्म दिया गया है कि नमाज का एहतमाम करो और उससे डरते रहो। वही है जिसके हुजूर में तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, और वही है जिसने ज़मीन और आसमानों को बरहक पैदा किया है। जिस दिन कहेगा कि हशर बर्पा हो जाए तो हो जाएगा, उसकी बात शुद्धनी है। जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन उसी की बादशाही होगी। वो गायब व हाजिर हर चीज़ का इल्म रखता है और वो हकीम व खबीर है। इन्हें इब्राहिम का वाक़या सुनाओ जब उसने अपने बाप आज़र से कहा था, क्या तुम बुतों को माबूद बनाए बैठे हो? मैं तो तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। इब्राहिम को हम इसी तरह ज़मीन और आसमानों की बादशाही का मुशाहदा कराते थे ताकि वो अपनी कौम पर हुज्जत कायम करे और ख़ुद भी उन लोगों में से हो जाए जो पूरा यकीन रखने वाले हों। चुनांचे एक दिन जब उस पर रात तारी हुई तो उसने तारा देखा और लोगों को मुतवज्जह देखकर कहा, ये मेरा रब है। फिर इसी तरह के एक मौके पर जब तारा डूब गया तो उसने कहा, मैं खुदाई के लिए इनको पसंद नहीं कर सकता जो डूब जाते हैं। फिर एक दिन चांद को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया, वो भी डूब गया, तो उसने कहा, अगर मेरे परवरदिगार ने मेरी रहनुमाई न फरमाई तो मैं गुमराह लोगों में से होकर रह जाऊंगा। फिर एक दिन सूरज को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उसने अपनी कौम को मुखातिब करके कहा, मेरी कौम के लोगों, मैं इन सब से बरी हूँ जिन्हें तुम खुदा के शरीक ठहराते हो। मैंने यकसू होकर अपना रुख उस हस्ती की तरफ कर लिया है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ।
اس کی قوم اس بات پر اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ درا حالانکہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کچھ چاہے، میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، پھر کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان چیزوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے جن کے حق میں اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی ہے۔ سو بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے کون امن و اطمینان کا زیادہ مستحق ہے اگر تم جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ امن و اطمینان تو انہی کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اور وہی راستہ پانے والے ہیں۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو عطا فرمائی کہ اپنی قوم پر قائم کرے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے پر درجے بلند کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار حکیم و علیم ہے۔ پھر یہی نہیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمائے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی۔ اس سے پہلے یہی ہدایت ہم نے نوح کو بخشی تھی، اور ابراہیم کے بعد اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو بھی ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ نیز ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں کو بھی ہم نے اپنی ہدایت سے نوازا، انہیں برگزیدہ کیا اور توحید کی اسی صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اس سے سرفراز فرماتا ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو ان کا سب کیا کرایا ان سے اکارت ہو جاتا۔ یہی لوگ تھے جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، سو تمہارے یہ مخاطبین اس کا انکار کریں گے تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے یہ نعمت کچھ اور لوگوں کے سپرد کر دی ہے جو اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ علم نبوت کے جن حاملین کا ہم نے ذکر کیا ہے وہی تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، سو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ ان لوگوں سے البتہ کہہ دو کہ میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا کہ نہیں مانو گے تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، یہ تو محض ایک یاد دہانی ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا تھا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو ورق کر کے انہیں دکھاتے اور زیادہ کو چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا جسے نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے، پھر انہیں ان کی کج بیسے میں چھوڑ دو، کھیلتے رہیں۔ یہ اسی کتاب کی طرح ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، جو کچھ اس سے پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دو، اور اس لیے کہ انہیں متنبہ کر دو جو ام القریٰ اور اس کے گرد و پیش کے رہنے والے ہیں۔ تم مطمئن رہو، جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اسے مانیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حال ہے کہ اس پر کوئی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے جو دعویٰ کرے کہ میں بھی اس جیسا کلام نازل کیے دیتا ہوں جیسا خدا نے نازل کیا ہے۔ اور کبھی تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی بے ہوشی میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تمہارے اس جرم کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کہ تم اللہ پر ناحق تہمت باندھتے تھے اور اس کی آیتوں سے متکبرانہ اعراض کرتے تھے۔ لو بالآخر ویسے ہی اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو جیسے پہلی مرتبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، جو کچھ دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے سب رشتے ٹوٹ گئے اور جو کچھ گمان تم کیے بیٹھے تھے وہ سب تم سے جاتے رہے ہیں۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکال لانے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، تو کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہی صبح نکالنے والا ہے، رات کو سکون کی چیز اسی نے بنایا ہے، اور سورج اور چاند ایک حساب سے رکھے ہیں۔ یہ اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے تاکہ صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں ان سے رہنمائی حاصل کرو۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہیں۔
वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, फिर हर एक के लिए एक जाए करार है और उसके सुपुर्द खाक किए जाने की जगह भी। हमने अपनी निशानियां उन लोगों के लिए खोलकर बयान कर दी हैं जो समझना चाहें। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे हर चीज़ के अखवे हमने निकाले, फिर उससे सरसब्ज शाखें उठाई जिनसे हम तय बढ़ते चढ़े हुए दाने पैदा कर देते हैं, और खजूर के शगुफों से लटकते हुए गुच्छे भी इसी से पैदा होते हैं, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार भी हमने इसी से पैदा किए हैं, जिनके फल एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और अलग अलग भी। इनमें से हर एक के फल को देखो जब वो फलता है, और उसके पकने को देखो जब वो पकता है। उनके अंदर उन लोगों के लिए बड़ी गैर मामूली निशानियां हैं जो मानना चाहते हैं, लेकिन इनकी सफाहत का यह आलम है कि उन्होंने जिन्हों को खुदा का शरीक ठहरा लिया है, तरह हालांकि उसी ने उन्हें पैदा किया है और बगैर किसी इल्म के उसके लिए बेटे और बेटियां तस्नीफ कर ली हैं। वो पाक और बाला तर है उन सब चीज़ों से जो ये बयान करते हैं। वो तो ज़मीन और आसमानों को अदम से वजूद में लाने वाला है, उसकी औलाद कहाँ से आई जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं है। उसने हर चीज़ को पैदा किया है और वो हर चीज़ का जानने वाला है। वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, हर चीज़ का खालिक है, लिहाजा उसी की बंदगी करो और वो हर चीज़ पर निगरान है। उसको निगाहें नहीं पा सकती लेकिन वो निगाहों को पा लेता है। वो निहायत बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बसीरत की आयतें तुम्हारे पास आ चुकी हैं, चुनांचे अब जो बसीरत हासिल करेगा अपना ही भला करेगा, और जो अंधा बना रहेगा उसका वबाल भी वही उठाएगा। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ। हम अपनी आयतें इसी तरह मुख्तलिफ उसलूबों से पेश करते हैं, इसलिए कि इन पर हुज्जत कायम हो, और इसलिए कि वो बोल उठें कि तुमने अच्छी तरह पढ़कर सुना दिया, और इसलिए कि हम उन लोगों के लिए जो जानना चाहें इसे हर लिहाज से वाज़े कर दें। तुम उस चीज़ की पैरवी करते रहो ऐ पैगंबर जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर वही की जा रही है। हकीकत यही है कि इसके सिवा कोई इलाह नहीं, और ये नहीं मानते तो इन मुशरिकों को जाने दो। अगर अल्लाह चाहता तो ये कभी शिरक न कर पाते। हमने इन पर तुम्हें निगरान मुकर्रर नहीं किया है और न तुम इनके जामिन हो। ये जिस सफाहत में मुब्तला हैं इसके बावजूद तुम लोग इन्हें गाली न दो जिनको अल्लाह के सिवा ये पुकारते हैं। मुबादा तजावुज़ करके ये बिन समझे अल्लाह को गालियाँ देने लगे, इसलिए कि हर गिरोह के अमल को हमने उसी तरह उसके लिए खुशनुमा बना रखा है। फिर एक दिन उन्हें अपने परवरदिगार की तरफ पलटना है, उस वक्त वो उन्हें बता देगा जो वो करते रहे हैं। ये अल्लाह की कड़ी कड़ी कसमें खाकर कहते हैं कि अगर कोई निशानी उनके पास आ जाए तो ये ज़रूर उस पर ईमान ले आएंगे। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं, लेकिन मुसलमानों तुम्हें क्या पता कि वो आ भी जाएं तो ये नहीं मानेंगे। हम उस वक्त भी उनके दिलों और उनकी निगाहों को इसी तरह उलट देंगे जिस तरह ये पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए, और उनकी सरकशी में उन्हें भटकता हुआ छोड़ देंगे।